गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारा जो रिमेनिंग टॉपिक है रिलेटेड टू कैपेसिटर्स वो आज हम डिस्कस करेंगे। और उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। वी कैन कनेक्ट कैपेसिटर्स आइदर इन सीरीज और इन पैरेलल। हम उस टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको 10 से रिलेटेड कुछ टॉपिक को रिकॉल करवाने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप ध्यान दें, दीज आर द 3 रजिस्टर्स विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इन तीनों से इक्वल अमाउंट ऑफ करंट पास होगी। तीनों से जो पास होने वाली करंट है वो इक्वल होगी, बट पोटेंशियल डिफरेंस is the product of current and resistance. As resistance is different, therefore potential difference across them will be different. Okay, ये चीज समझ में आ गया होगा। And in case of parallel combination of resistor, यहाँ जो भी current होगी, that current will divides into 3 parts. That current will divides into 3 parts. The current through first resistor is I1, current through second resistor is I2, and current through third resistor is I3. As the combination is connected across the same 2 points, and potential difference across them will remain same. तो in case of series combination तीनों में current same है, जबकि parallel combination के केस में potential across them will remain same. Okay? तो यही कॉन्सेप्ट हमें अपने दिमाग में रखते हुए इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन ले लेते हैं कि लेट अस कंसीडर दैट 3 कैपेसिटर of capacity C1, C2, C3 are connected in series. Okay? यहाँ एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है किस तरह से वो फ्लो करता है और किस तरह से चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे ऑन द प्लेट्स, वो मैं साइड में आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। When they are connected in series, same amount of current flows through each and every capacitor. Means equal amount of charge develops on each and every capacitor. किस तरह से डेवलप होता है वो आप ध्यान दें। मान लेते हैं ये कैपेसिटर है, ओके। यहाँ पर आप ध्यान दें कि जब करंट पास होगी तो इसके प्लेट्स पर चार्जेस डेवलप होंगे और इंडक्शन के कारण इसके इनर साइड में नेगेटिव चार्ज और अपोजिट साइड में किस तरह का चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, एज दिस प्लेट इज कनेक्टेड टू द first plate of the second capacitor, this positive charge flows to first plate of the second capacitor. Okay, and again due to induction negative charge develops on this side and positive charge on opposite side, and that positive charge again flows to first plate of the next capacitor. तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा होगा कि इस केस में यहाँ चार्ज Q है तो यहाँ कितना चार्ज डेवलप हुआ, -Q, और जो +Q चार्ज डेवलप हुआ वो कहाँ पहुँच गया, इस जगह पर। इसका मतलब क्या है, सभी कैपेसिटर पर इक्वल अमाउंट का चार्ज डेवलप होगा। ओके, तो यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, चार्ज तीनों कैपेसिटर पर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द फर्स्ट कैपेसिटर, Q. What is the amount of charge on the second capacitor, Q. Okay, what is the amount of charge on the third capacitor, Q. Is it clear? And as we know that Q is equal to CV. Q किसके इक्वल होता है, it is equal to CV. Q is equal to CV. And capacity of these 3 capacitor, तीनों कैपेसिटर की कैपेसिटी डिफरेंट है। ओके, और तीनों पर जो चार्ज है वो इक्वल है। तो what we can say about the potential, तो potential भी क्या होगा, different होगा। Let the potential across the first is V1, potential across second is V2, potential across third is V3. Okay, तो charge on this plate of the capacitor is product of C1 and V1. Charge on this capacitor is equal to product of C2 and V2 and so on. Okay, from here we can write V1 and it is equal to Q by C1. यहाँ से हम V2 की वैल्यू लिख सकते हैं, V2 is equal to Q by C2. यहाँ से हम V3 की वैल्यू लिख सकते हैं, V3 is equal to Q by C3. Okay, what is the applied potential across the combination? इस पूरे combination के across applied potential कितना है? It is equal to V1 plus V2 plus V3. Okay, as we substitute these values, इन values को अगर हम इस relation में रखें तो हमें क्या मिलेगा, Q
Q सब में कॉमन है, एंड विद इन ब्रैकेट वी हैव 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. ओके, यहाँ हमारा जो मेन पर्पस है वो पर्पस क्या है? वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. मींस एक ऐसे कैपेसिटर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है जिससे हम इस पूरे कॉम्बिनेशन को रिप्लेस कर सकते हैं. मान लेते हैं कैपेसिटी ऑफ दैट कैपेसिटर इज C, which can be used to replace the whole combination. Okay, now what is the potential difference across the combination? V. Potential difference across the combination is V1 plus V2 plus V3, that is equal to V. Okay, what is the charge on these capacitor? Q. तो यहाँ पर भी चार्ज क्या होगा? Q. Accordingly we can write Q is equal to CV, or we can write V is equal to Q by C. हम इस इक्वेशन को मार्क कर रहे हैं फर्स्ट और इस इक्वेशन को मार्क कर रहे हैं सेकंड. दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सेम. तो इनके राइट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे. कंपेयर करने से Q और Q कैंसिल हो जाएगा, एंड वी आर रिमेन विद 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. And this formula can be used to find the equivalent capacitance in case of series combination. ये रिलेशन आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है वो रिलेशन है. वहाँ पर हम लिखते हैं 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन. ओके, C1, C2, C3, these are the three capacitors connected in parallel. Okay, in such case the current or the charge flowing through the circuit divides into three parts. Okay, charge on first capacitor is Q1, charge on second capacitor is Q2, charge on third capacitor is Q3. But as the three capacitors are connected in parallel, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में क्या होगा? दे आर कनेक्टेड अक्रॉस द पॉइंट A and B, और A और B के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अगर V है तो फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? इक्वल टू V. सेकंड के अक्रॉस भी कितना होगा? इक्वल टू V. और थर्ड कैपेसिटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V. यानी कि इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम क्या आएगा? सभी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम है. ओके, अगेन by using the same concept we know that Q is equal to CV. Q is equal to CV. Q is equal to C. Okay, what is the capacity of capacitors? C1, C2, C3. Okay, क्या तीनों पर चार्ज सेम है? No. So charges are Q1, Q2, Q3. But potential difference across them. Potential difference across them as they are connected in parallel. Potential difference तीनों के across क्या है? Same है. Okay. तो net amount of charge flowing through the circuit is given by Q1 plus Q2 plus Q3. Okay. अगर ये values इस relation में रखें तो हम इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? V कॉमन आ रहा है. Within bracket we will have C1 plus C2 plus C3, और तीनों का V कॉमन आ गया. ओके, मार्क दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं? वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. ओके, फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एक ऐसा कैपेसिटेंस जो हम यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ द कॉम्बिनेशन. मान लेते हैं वो कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है? C. ये जो कैपेसिटर है it is called equivalent capacitance. It means we can replace the whole combination by this capacitor. Okay, अब बताओ कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? V. इस पर टोटल चार्ज कितना होगा जो इस कॉम्बिनेशन पर टोटल चार्ज है, which is equal to Q. Okay, from here we can write for this capacitor, for equivalent capacitor we can write Q is equal to CV. Mark this equation as equation number second. Now from first and second दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? Q. और जैसे ही हम राइट हैंड साइड को इक्वेट करेंगे V से V कैंसिल हो जाएगा, एंड वी गेट C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3. इट मीन्स in case when capacitors are connected in parallel, the equivalent capacitance is given by algebraic sum of capacitance of individual capacitors. Okay, जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का जो फॉर्मूला वो यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस के केस में हम यूज करेंगे. सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में 1/CS is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3. This type of this formula will be used. And for parallel combination, the equivalent capacitance is given by C1 plus C2 plus C3. Okay. In case of series combination, important concept क्या है?
charge across each and every capacitor will remain same. And in case of parallel combination, क्या concept है? Potential difference across each and every capacitor will remain same. Okay? और जिस तरह से हमने 10th क्लास में रजिस्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था, उसी तरह से हम कैपेसिटेंस पर बेस्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं. यस स्टूडेंट्स, एक बार सामने ध्यान दें कि मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है. ओके, अगर हम इसको लिफ्ट करते हैं, वी आर डूइंग वर्क. ओके, अगर हम इसको लिफ्ट कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर परफॉर्मिंग वर्क, वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी. और जो भी वर्क हम इसमें करेंगे, इट गेट स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. सिमिलरली, जब हम कैपेसिटर के प्लेट्स पर चार्ज देते हैं, तो वी हैव टू परफॉर्म वर्क अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कैपेसिटर, एंड सेम वर्क गेट स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज our purpose is to find the amount of energy or potential energy stored in a charged capacitor. Okay, now let us consider a capacitor of capacity C. It is connected to a battery along with a key. Okay, as soon as we close the key, जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे, क्या होगा? सर्किट में करंट फ्लो करेगी and charge develops on the plates of the capacitor. Charge develops on the plates of the capacitor. Let Q be the charge on the plate of the capacitor at any instant. Therefore, the potential difference across the two plates of the capacitor is given by Q by C. यानी उस केस में इन दोनों प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? V. ओके, अब इस पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट इसको और चार्ज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू परफॉर्म वर्क. और वो वर्क कौन करेगा? दैट वर्क विल बी डन बाय बैटरी. ओके, उस चीज को समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आपके सामने रख रहा हूँ. सपोज ए एंड बी आर द 2 पॉइंट्स. ओके, एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल है VA और इसका पोटेंशियल है VB. ओके, अब अगर किसी टेस्ट चार्ज को हमें मूव करना है अगेंस्ट दिस पोटेंशियल डिफरेंस, we have to perform work, and amount of work done is given by product of the charge and potential difference across the 2 points. ये आपने रिलेशन पढ़ रखा है कि work done in moving any test charge from one point to another is given by this relation. Okay, and it is equal to the product of charge and potential difference. अब यहाँ पर आप ध्यान दें, this battery has to perform work in order to give additional charge to the plate. Okay, अब यहाँ हमें देखना है कि इस प्लेट को DQ चार्ज देने के लिए, कितना वर्क करना पड़ेगा? दैट द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू गिव एडिशनल अमाउंट ऑफ चार्ज टू द प्लेट इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, जैसा हमने यहाँ लिखा है, and potential difference is equal to V. Okay, and this V is equal to Q by C. Therefore, the work done can be written as Q by C into dQ. Okay, this is the amount of work done by the battery. In order to give additional amount of charge. Okay, लेकिन हमारा पर्पस क्या है? To find the total amount of work done. Okay, total amount of work done के लिए हम क्या करेंगे? We have to take integration on both sides with proper limit. एंड लिमिट्स किसके रेस्पेक्ट में होनी चाहिए? चार्ज के रेस्पेक्ट में. इनिशियली चार्ज कितना था? 0, और हम इस कैपेसिटर को फुली चार्ज करना चाह रहे हैं, मींस अप टू Q चार्ज तक हम इसको चार्ज करना चाह रहे हैं. तो व्हाट आर द लिमिट्स? 0 टू कैपिटल Q. ओके, तो अगर इस वर्क डन को हम फाइंड आउट करें, तो यहाँ पर आप ध्यान देना, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज. इट डिपेंड्स ऑन द प्लेट्स का एरिया, सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट एंड मीडियम इन बिटवीन द टू प्लेट्स. ओके, तो ये जो टर्म है C, वो कांस्टेंट है. इट कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन साइन. विद इन इंटीग्रेशन हमारे पास क्या बच रहा है? Q dQ. व्हाट आर द लिमिट्स? 0 टू कैपिटल Q. ओके, और इंटीग्रेशन ऑफ x dx ये आता है x²/2. तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ये रिलेशन आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा Q²/2 एंड लिमिट्स आर 0 टू कैपिटल Q. ओके, लिमिट्स के केस में हम क्या करते हैं? अपर लिमिट वैल्यू रखते हैं, उसमें से माइनस करते हैं लोअर लिमिट वैल्यू. तो हमें क्या मिलेगा? 1/c विद इन ब्रैकेट Q²/2 माइनस 0. ओके, मीन्स अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू Q²/2c. ओके, ये चीज आपको समझ में होगा कि दिस अमाउंट ऑफ वर्क इज टू बी परफॉर्म्ड बाय द बैटरी इन ऑर्डर टू गिव capital Q charge on the plate. Okay,
and same work it get stored in the form of potential energy which is represented by letter U, जिसको कि हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लेटर U से. तो therefore U is equal to Q square by 2C. Okay, and as we know that Q is equal to CV. Q किसके इक्वल होता है, CV. ये वैल्यू यहाँ रखें तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिल जाएगा, C स्क्वायर V स्क्वायर, एक सी कैंसिल, हमारे पास बचेगा हाफ ऑफ CV स्क्वायर. अगेन एज Q इज इक्वल टू CV, C और एक V, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं Q से, तो हाफ ऑफ QV. ओके, these are the three different formula which can be used for calculating the amount of energy stored in parallel plate capacitor or to calculate the potential energy of a charged capacitor. कई बार डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ग्राफिकली, तो वहाँ ध्यान दें कि पोटेंशियल एनर्जी, सपोज वी हैव टू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन U and potential energy and Q. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू द रिलेशन हमें साफ नज़र आ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q स्क्वायर. इसका मतलब क्या है, Q की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, U इज ऑलवेज पॉजिटिव. यानी कि जब हम बात करते हैं कि y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, y इज ऑलवेज पॉजिटिव. ओके, और वो ग्राफ किस तरह का आता है, एक्स वाई वाला, वो ग्राफ कैसा आएगा कि x अगर नेगेटिव है तब भी y पॉजिटिव है, x अगर पॉजिटिव है तब भी y पॉजिटिव है. तो वो ग्राफ आता है इस तरह का. तो यहाँ पर भी उस वेरिएशन को हम इसी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. हमें लेफ्ट हैंड साइड पार्ट रिप्रेजेंट करना जरूरी नहीं है, तो हम यहाँ पर वेरिएशन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर व्हेन वी आर प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन U एंड Q, यहाँ पर हमने क्या चीज कंसिडर किया है कि कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कांस्टेंट. ओके, इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन U एंड Q फॉर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, अब आप ध्यान दें कि इस केस में हम कौन सा रिलेशन यूज करेंगे. हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी चार्ज की और पोटेंशियल की, पोटेंशियल एनर्जी चार्ज की और पोटेंशियल की. तो अगर V कांस्टेंट है तो हमें क्या नजर आ रहा है, U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q. इन सच केस वी गेट स्ट्रेट ग्राफ. यानी कहने का मतलब हम U और Q में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो वहाँ पर कौन से फैक्टर को हम कांस्टेंट कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट. अभी हमने डिस्कस किया कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर इज गिवन बाय हाफ ऑफ CV स्क्वायर एंड दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, अब इसका प्लेट सेपरेशन कितना है, D, और प्लेट का एरिया कितना है, A. Okay, what is the volume of the capacitor? Volume of the capacitor is A into T. Okay, now if we have to find the amount of energy stored per unit volume, and that amount of energy stored per unit volume is called energy density, which is represented by small u. Amount of energy stored per unit volume is called energy density. Okay, so energy stored is equal to half of CV square and volume is equal to A into D. Okay. From here we can write 1 by 2 C V square upon A into D. As we know that capacity of parallel plate capacitor is given by epsilon naught A by D. क्या लिख सकते हैं, कैपेसिटी epsilon naught A by D. उसके अकॉर्डिंग अगर ये वैल्यू रखें तो we get half of epsilon naught A by D, और ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है V square into A D. ओके, A से A कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर बाय D स्क्वायर. ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी. एक और कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट. ओके, इज गिवन बाय नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट. अब यहाँ पर आप ध्यान देना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू प्लेट इज V and distance between the two plate is D. Means the electric field in between the two plate is given by V by D. तो हम V by D को रिप्लेस कर देंगे किससे, E से. Therefore the energy density is given by half of epsilon naught E square. Okay, half of epsilon naught E square. This relation clearly indicates that energy is stored in parallel plate capacitor in the form of electric field. In the form of electric field. Okay, this is all about energy stored in parallel plate capacitor.
one more topic we have to discuss, that is sharing of charges by the capacitor and energy lost during sharing of charges. इस चीज़ को समझने के लिए पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान देना कि सपोज A and B are two conductor, ये दो कंडक्टर है, it is charged, ये कंडक्टर चार्ज है, and this conductor is charged to V1 potential and this conductor is charged to V2 potential. Okay, and if V2 is more than V1, okay, potential of this conductor is higher than the potential of this conductor. Now if we connect them by a wire, अगर हम इसको एक वायर से कनेक्ट कर दें, in such case the charges begins to flow from conductor at higher potential to conductor at lower potential. Charge always flows from conductor at higher potential to conductor at lower potential. अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये चार्ज कब तक फ्लो करेगा, तो चार्ज कब तक फ्लो करेगा, till the potential of two became equal. Potential of two became equal. Similarly, when we connect two capacitor across each other, they will share their charges till the potential of the two became equal, and that potential is called common potential. हम उसी कॉमन पोटेंशियल की भी बात करेंगे और एनर्जी लॉस की भी बात करेंगे, कितनी एनर्जी लॉस होगी. फॉर एग्जांपल, लेट वी आर हैविंग टू कैपेसिटर C1 and it is charged to V1 potential, okay, and capacitor C2, it is also charged, let it is charged to V2 potential, okay. ये कैपेसिटर V1 पोटेंशियल तक चार्ज है और इस कैपेसिटर को हमने चार्ज किया अप टू V2 पोटेंशियल. अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के अक्रॉस कनेक्ट कर दें तो क्या होगा. एज वी कनेक्ट C1 एंड C2 अक्रॉस ईच अदर, दिस कैपेसिटर इज आल्सो चार्ज, दिस कैपेसिटर इज आल्सो चार्ज, लेकिन क्या दोनों का पोटेंशियल सेम है. अभी हमने बात की इसका पोटेंशियल कितना है V1, इसका पोटेंशियल कितना है V2. अगर मान लेते हैं if V1 is greater than V2 means potential of this capacitor is higher than the potential of this capacitor, then charge starts flowing from capacitor first to capacitor second till the potential of two became equal. जब तक दोनों का potential equal नहीं हो जाता, जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता, और वो पोटेंशियल मान लेते हैं V है, तो दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल. उसी पोटेंशियल को हम क्या नाम दे रहे हैं, कॉमन पोटेंशियल. हमें इस कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आप ध्यान दें. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द फर्स्ट कैपेसिटर C1 V1, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द सेकंड कैपेसिटर C2 V2, और जो स्टेप्स हम यहाँ यूज कर रहे हैं सेम स्टेप्स कैन बी यूज्ड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल. ओके, what is the total charge of the system, that is Q1 plus Q2 means C1 V1 plus C2 V2. Okay, when the two capacitors are connected in parallel, what is the total capacitance, it is equal to C1 plus C2. Okay, अब यहाँ पर आप ध्यान देना, we can replace this combination by a single capacitor. What is the capacity of that capacitor, C, and what is the total charge on that capacitor, Q. Okay, now potential difference across the combination is V, and that V is called common potential. So accordingly we can write Q is equal to, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, Q is equal to CV. Okay, from this relation we can write V is equal to Q by C. Okay, this Q is equal to C1 V1 plus C2 V2. And this C is the total capacitance which is equal to C1 plus C2, and this is the formula for common potential. Okay, तो common potential क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा कि when the two capacitors are connected across each other, they start sharing their charges till the potential of the two became equal, and that potential is called common potential. Okay, now let us discuss the amount of energy lost during sharing of the charges. How much energy is stored in the first capacitor? Half of C1 V1 square. How much energy is stored in second capacitor? Half of C2 V2 square. Okay, what is the initial energy stored in the system? इस system में initially कितनी energy stored थी? That is half of C1 V1 square plus
half of C2 V2 square. Okay. Now, if they are connected across each other, we can replace that combination by a single capacitor, और उस कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना होगा, इक्वल टू द कॉमन पोटेंशियल, एंड चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम. ओके. नाउ फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन आइदर ऑन दिस कॉम्बिनेशन, और इस कॉम्बिनेशन को अगर हम सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर दें तो फाइनल एनर्जी इज गिवन बाय हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर. ओके, वेयर सी इज द कैपेसिटेंस of the combination which is equal to C1 plus C2 and V is the common potential. जो अभी हमने डिस्कस किया था कॉमन पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला था, C1 V1 plus C2 V2 अपॉन C1 plus C2 इसका V स्क्वायर है इसलिए इसका होल स्क्वायर. दिस इज द अमाउंट ऑफ फाइनल एनर्जी. ओके, दिस इज द अमाउंट ऑफ फाइनल एनर्जी. नाउ इफ वी कंपेयर, इफ वी सॉल्व, अगर हम इसको सॉल्व करें, कंपेयर करें इनिशियल और फाइनल एनर्जी स्टोर्ड, ओके, वी विल फाइंड दैट फाइनल एनर्जी इज लेस देन, न्यूमेरिकली अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा कि फाइनल एनर्जी इज लेस देन इनिशियल एनर्जी, मींस सम एनर्जी इज लॉस्ट ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्जेस. यहाँ हम इसको और सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये जनरली न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, तो न्यूमेरिकल होगा उसमें ये आराम से सॉल्व हो जाएगा और हम कंपेयर कर सकते हैं कि फाइनल एनर्जी जो है वो इनिशियल एनर्जी से कम है, इसका मतलब वो एनर्जी कहाँ गई, दिस एनर्जी इज लॉस्ट वाइल शेयरिंग चार्जेस. ओके, अब वो लॉस्ट क्यों हो रही है, बिकॉज व्हेन चार्जेस फ्लोज थ्रू द कंडक्टिंग वायर, जब चार्जेस कंडक्टिंग वायर के थ्रू फ्लो कर रहे हैं, सम ऑफ द एनर्जी इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट. उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा और अब हमारा हमने लगभग इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स को 5 to 6 डिफरेंट पार्ट्स में हमने कवर अप किया है. अब मेन जो हमारा पार्ट बच रहा है वो क्या है, न्यूमेरिकल पार्ट है. अगर हमें ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आते हैं तो न्यूमेरिकल पार्ट को हम बहुत इजीली समझ सकते हैं. तो एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बिफोर वी स्टार्ट न्यूमेरिकल वी मस्ट गो थ्रू द होल कंटेंट, होल चैप्टर, होल यूनिट. ओके, और इसी उम्मीद के साथ अगली बार मिलते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ.